کرتے ہیں اس گڈ فرائیڈے کی عبادت میں خداوند نے ہم سبوں کو زندگی، صحت، سلامتی اور تندرستی عطا فرمائی تاکہ ہم آج اس عبادت میں شامل ہو سکیں۔ اس سے پیشتر آپ نے 6 کلمات خداوند کے کلام مقدس میں سے سنے جو میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح نے اپنے آخری کلمات ادا کیے۔ ہم نے سنا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ ہم نے سنا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور تیسرا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کا اظہار اپنی والدہ محترمہ سے کیا اور یوحنا رسول کے سپرد کر دیا، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے چوتھا کلمہ جو زبان مبارک سے فرمایا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پانچواں کلمہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ اپنی پیاس کو ہم انسانوں کے لیے ظاہر کیا۔ چھٹا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ تمام ہوا۔ اس کے بعد میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے 7ویں کلمے کے لیے تیار کیا، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ ہم اس کلام مقدس کے حوالے پر نگاہ کریں، جب میرے ساتھیوں نے جو 6 کلمات آپ کے سامنے بیان کیے، یقینی طور پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہوگا، پہلے 3 کلمات جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کے لیے فرمائے، اور دوسروں کے لیے جو فرمائے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں اور ڈاکو کے بارے میں فرمایا کہ تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا۔ اپنی ماں کو یوحنا کا بیٹا بنایا اور خداوند نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ پہلے 3 کلمات جو تھے دوسروں کے لیے بیان کیے گئے، اور چوتھے کلمے سے لے کر 7ویں کلمے تک خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بیان کیا۔ اپنے بارے میں جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند نے فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ساری رات کی پیشیوں کے بعد، سارا دن صلیب پر لٹکے رہنے کے بعد، بڑے ہوش و حواس میں خداوند نے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کی، کیونکہ خداوند نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ مجھے جان لینے کا بھی اختیار ہے اور دینے کا بھی اختیار ہے۔ پہلے کلمے جیسے میں نے بیان کیا، 3 کلمے خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کے لیے کہے اور 4 کلمے اپنے لیے کہے، اور کلام میں لکھا ہے جیسے ابھی آپ نے تلاوت سنی، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ پھٹ گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پہلے 3 کلمے جو خداوند نے اپنی زبان مبارک سے فرمائے وہ یہ تھے، روشنی تھی، اور روشنی میں یہ 3 کلمے فرمائے تاکہ جو لوگ مصلوب کرنے والے تھے وہ بھی جان لیں، اور جو مصلوب ہو رہا ہے وہ بھی جان لیں، سب لوگ جان لیں کہ مصلوب کون ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اور جو باقی 4 کلمے تھے، اس میں ہم فطرت کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ فطرت نے لکھا ہے کہ روشنی نہ رہی۔ جب خداوند نے فرمایا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو فوق الفطرت رد عمل سامنے آیا۔ سورج کی روشنی جاتی رہی اور فطرت نے گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہو
तो आसमान पर फरिश्ते और सितारा जो है खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए जमीन पर आए। जब खुदावंद जान दे तो उस वक्त ये चीजें गवाह बनने से इनकारी हो जाए। यानी सूरज की रोशनी जाती रही, मकदस का पर्दा फट गया, जमीन लरज उठी, चट्टानें तिड़क गईं, कब्रें खुल गईं, और उस वक्त एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। वो सूबेदार था, जो आखिरी शख्स था, वो सूबेदार था। उसने कहा कि यकीनन ये खुदा का बेटा है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर मेरे लिए और आपके लिए और तमाम जहानों के लिए अपने आप को पेश किया, ताकि हम उसके मार खाने से उसके शिफा हम पा सके। सातवां कलमा खुदावंद यीशु मसीह के मिलाप को जाहिर करता है। जो बाप के साथ खुदावंद का मिलाप था वो दोबारा हो गया। 6 दिन काम करे और 7वें दिन आराम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी सलीब पर 7 कलमात फरमाए, और 7 का अदद हम सब जानते हैं कि कामलियत का अदद है। 7 का अदद किसी भी मिशन, किसी भी काम, किसी भी खिदमत को पूरा करने की तकमील को जाहिर करता है। पैदाइश की किताब में 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया। यहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश से लेकर बियाबान तक, और बियाबान से लेकर कलवरी तक, गसमनी तक, और गसमनी से लेकर कलवरी तक, और पहले कलमे से लेकर 7वें कलमे तक कामलियत को ज़ाहिर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र मिलता है कि यहूदी औरतें जब रात को अपने बच्चों को सुलाती थी तो उस वक्त ये दुआ किया करती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें ऐ बाप का इजाफा किया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। यह खुदावंद यीशु मसीह का बाप पर कामिल भरोसा जाहिर करता है। 12 घंटे तक खुदावंद यीशु मसीह आदमियों के हाथों में रहे। आदमियों ने खुदावंद यीशु मसीह पर जो मजालम ढाए, उन पर जब हम निगाह करते हैं तो बहुत ज्यादा मजालम उन लोगों ने ढाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने भरोसे को दोबारा जाहिर करते हैं कि खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कलमा खुदावंद की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी की अक्कासी करता है। खुदावंद ने खुद अपनी जान पेश की। खुदावंद ने मेरे लिए, आपके लिए और हम सबों के लिए इज्जी के तौर पर अपनी जान कुर्बान दी। खुदावंद ने बड़ी तसल्ली में बाप के साथ अपनी रफाकत को कायम किया। यह एक ऐसा रिश्ता था जो बाप बेटे के दरमियान अजल से कायम था। यह कलमा उस बात की बहाली को जाहिर करता है। ईमानदार अक्सर ये दुआ करते हैं कि तू मेरी रूह को कबूल कर। ईमानदार इस किस्म की दुआ करते नजर आते हैं। पोलीकारब, स्टीफनस, पतरस की दुआएं इस किस्म की दुआएं थी। यह कलमा ईमानदारों के लिए एक अबदी तसल्ली की बात रखता है। मौत ईमानदार के लिए एक दरवाजा है जिसमें से ईमानदार गुजरकर बाप की रफाकत में चला जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। लेकिन यह रफाकत हमें मुकस्सों के हम वतन और खुदा के घराने का शरीक बनाती है। अपनी रूह खुदावंद के हाथों में देना ये बहुत बड़ी तसल्ली है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर फरमाते हैं कि मैं अमानत वापस कर रहा हूं। उस मिशन को जो आपने मुझे भेजा था उसे पूरा करके तेरे पास लौट रहा हूं। और मैं एक मिसाल यहां पर देना चाहता हूं कि एक बहुत बादशाह था, उसने किसी मुल्क पर हमला किया लेकिन उसे शिकस्त हो गई। 2-3 बार उसे शिकस्त हुई, बड़ा परेशान हुआ।
उसका एक बड़ा अहम कमांडर था, उसको उसने ये जिम्मेदारी सौंप दी। उस कहानी में लिखा है कि उस कमांडर ने जब उस मुल्क को फतेह किया तो उसका अपना सारा सीना वहां पर छलनी हो चुका था। उसने झंडा वहां पर लहरा दिया फतेहमंदी का। बाइनी इसी तरह मेरे और आपके खुदावन ने भी जब ये सब कुछ हुआ तो कलाम में लिखा है कि खुदावन ने अपने बाप के सुपुर्द अपनी रूह की, बाप की गोद में अपनी रूह को सौंपा और कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो खिदमत तूने मुझे दी थी मैं उसे पूरा करके वापस लौटा हूं और मैं उस सारी खिदमत के इवज तुझे मुबारक कहता हूं। जब हम यशायाह की किताब उसका 49 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। गो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी। खुदावंद के पास अब हमारी शफायत के लिए मौजूद है। ये कलमा अब्दी सलामती की जगह की निशानदही करता है। ये खुदा के साथ रफाकत की मुबारक हाली को पेश करता है, रूह की हकीकी पनाहगाह का बयान करता है कि हम भी अपनी रूह अपने खुदावंद के हाथों में सुपुर्द करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख, मैंने तेरी खताओं को गटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की में मिटा डाला है। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। इसमें खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए हमेशा अपने बाप के काम में मसरूफ था। फिर जहां से रुखसत होते वक्त अपनी रूह को उसके हाथों में सुपुर्द किया। और हम भी मिन्नत करते हैं वफादारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें और अपनी निजात को कभी ना भूलें। जान दिन तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ये अमानत वापस कर रहे हैं। कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब जिंदगी की जरूरत नहीं है। जो काम तूने मुझे सौंपा था मैंने उसे पूरा करके तेरे पास आया। अब मैं चंद अल्फाज में इन 7 कलमों का बयान करना चाहता हूं जो एक शायर ने लिखे हैं। देखो सरे सलीब वो गमखारे दो जहां है, अपने खून से लिख रहा सूली की दास्तां। है बाप, मेरे दुश्मनों को कर मुआफ तू, अपने किए से बेखबर जाएंगे ये कहां। चलता हूं तुझको साथ में फिरदौस को लिए, दरिया है मेरी रहमतों का हर तरफ रवां। यूहन्ना को अपनी मां का बेटा बना दिया, एक दूसरे के हो गए दोनों ही मेहरबान। क्यों मुझको छोड़ा ए खुदा, क्यों मुझसे है खफा, तेरी वफा पे फिदा की मैंने तो अपनी जान। तशना हूं मैं मिलाप का, इंसान के प्यार का, पूरे हुए हैं आज नबियों के सब बयान। सर को सिरके को चख के कह दिया कि हो गया तमाम, वो काम जिसके वास्ते छोड़ा था आसमान। रूह को मेरी कबूल कर, मेरी है ये दुआ, अहले जमी हो सरनगू, सुली हो आसमां। खुदावंद इस कलमे के वसीले से मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत दे और इस बात की तौफीक दे ताकि हम हमेशा अपने खुदावंद की कुर्बानी को याद रखें। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।